Hello and shalom to my dear brothers and sisters. Happy Resurrection Day and happy Easter to all of you. This is again Kunal. I'm connecting from Mumbai. Then I'm wishing you once again happy Easter and happy Resurrection Day. My dear brothers and sisters, I'm hoping and praying to God that you all will be safe and sound at your respective places and celebrating this amazing day with hope, gladness, and happiness, and you must be spreading the joy of Jesus Christ, the hope of Jesus Christ, and the love of Jesus Christ amongst your society and amongst your near and dear ones. तो आप लोग जो खुदावन यीशु मसीह की जो मोहब्बत है वो आप लोग अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी, अपने समाज, अपने जो भी कस्बे है, अपने जो भी माजरा है, वहीं पे आप लोग शेयरिंग कर रहे होंगे। तो कितनी बड़ी खुशखबरी है कि आज परमेश्वर यीशु मसीह ने आज मौत को फतेह पाया और हमको सिखाया कि तो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो भी अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है जो मौत की तरह से आते हैं, उसमें से हम कैसे फतह पाए, हम कैसे गलीब बने उसमें से। तो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टुडे आई एम हियर टू टेल यू वंस अगेन दैट are we celebrating this day only because of this world celebrates, or it has been celebrated since 2000 years back, or you have been celebrating this with new hope and new determination and new things. Then you have buried out your old nature, then you have been resurrected by Jesus Christ as with new hope and new spiritual desire and new things. My dear brothers and sisters, the great man of God Billy Graham said amazingly that the greatest need in this world at this moment is the transformation of human nature. Again, I'll read it out. The greatest need in the world at this moment is the transformation of human nature. My dear brothers and sisters, amazingly, exactly he has said this thing. So today, this resurrection day, or a happy Easter day, so today we must be we must see some newness in our life. We must see something new things in our life by spiritually, mentally, physically, economically, socially, in every aspect of our life. So God who has been resurrected us. Obviously, Jesus Christ was been resurrected 2000 years ago, that we have been celebrated. बहुत लोगों के लिए हो सकता है ट्रेडिशन के हिसाब से सेलिब्रेशन करे, परंपरा रीति रिवाज के हिसाब से सेलिब्रेशन करे. No, it is not like. Jesus Christ was taught us. Then he had given the love from the cross to share it across amongst our family members, amongst the society, and अपने निजी जिंदगी में. My dear brothers and sisters, today I'm going to take you to Galatians 5:22, 23 and 23. Let's read it out. कि क्या किस विषय में परमेश्वर चाहता कि हम रेजुरेक्शन हो, हम लोग विजय हो जाए, हम फतेहवन हो जाए. तो आज कलाम मुक़द्दस क्या बताती है? क्या हम सिर्फ रीति रिवाज और परंपरा और ट्रेडिशन के हिसाब से क्या हम ये दिन को सेलिब्रेशन करें, और परमेश्वर सच में क्या चाहता है, कौन सी विषय में, कौन सी माजरा और कौन सी घटना है कि जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि उसमें से हम बदलाव वाला है. आइए पढ़ते. Galatians 5:22, 23 and 24. But the fruit of Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. ये जब चीज़ें जितनी भी परमेश्वर ने बताया ये कलाम मुक़द्दस में, उसके लिए कोई शहरियत नहीं है, कोई कोई लॉ नहीं है. ये बस परमेश्वर की कलाम मुक़द्दस बताती कि ये हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहना चाहिए. Let's read 24. And those who are Christ's have crucified the flesh
with its passions and desires. My dear brothers and sisters, exactly as I said in the beginning, Jesus Christ wants us to start with our so he wants to change our nature, behavior, attitude, mentally, physically, spiritually, socially, economically, in every aspect of our life. God wants to be change. He doesn't want to see in the same thing. और मोनोटोनियस नहीं होना चाहिए अपने लाइफ में. रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा आपकी पीढ़ी, आपकी नस्लें वही सेम रीति रिवाज में चल रहा है. परमेश्वर वो नहीं चाहता. परमेश्वर कुछ बदलाव चाहता है. God wants some changes in our life. My dear brothers and sisters, परमेश्वर चाहता है कि आप तो मतलब डे टू डे लाइफ में ईयर ऑन ईयर, साल भर, जब साल आएगा, मतलब इस साल आया, नेक्स्ट ईयर भी आएगा, आप बस रेजरेक्शन डे मनाएंगे और अपना जो ईस्टर डे मनाएंगे. मगर क्या आप में, आपके नेचर में, क्या आपके चाल चलन में, आपके सोच विचार में क्या बदलाव आया है? कि बस ऐसे परंपरा को लेकर चलते रहेंगे, पीढ़ी पर पीढ़ी आते रहेंगे, नस्लें वर नस्लें आते रहेंगे कि हम जो अपने नस्लें करके आए, क्या हम वो उस अपने नस्ल को सिखा रहे कि और कुछ दूसरा कुछ सिखा रहे? ताकि हम जो अपने जो पीढ़ी करके आई, तो अपने जो नई पीढ़ी आने वाले, उनको कुछ हम दूसरा कुछ सिखा रहे. परमेश्वर वो चाहता है. माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर आज वो चाहता है कि आज जो नफरत है, हेट्रेड है, उसको दफना के प्यार, जो मोहब्बत है, जो सूली पे परमेश्वर ने दिखाया है, उसको, उसके साथ आज आपको मतलब रेजरेक्शन होना पड़ेगा. जो मिजरी है अपने लाइफ में, जो दुख तकलीफ है, उसको अब दफना के आज जो खुशी का जो माहौल है, उसके साथ परमेश्वर, वो उसके साथ परमेश्वर का आज आपको रेजरेक्शन होना. दैट्स जॉय, ग्लैडनेस एंड कॉन्फ्लिक्ट. We must resurrect with Jesus Christ. That is like peace. Impatient, जो धीरज नहीं है अपने मन में, उसको दफना के आज जो पेशेंस है, आज धीरज है, जो सब्र है, उसके साथ, यीशु मसीह के साथ आज को आप रेजरेक्शन होना पड़ेगा. अनकाइंडनेस मीन्स जो मतलब ही है अपने पास, धन दौलत शोहरत के लिए आज भाई बहन माता पिता कोई किसको पहचान नहीं पा रहा है, उसको आज दफना के यीशु मसीह के साथ आपके जो काइंडनेस है, जो मोहब्बत है, प्यार मोहब्बत है, उसके साथ यीशु मसीह के साथ आपको रेजरेक्शन होना पड़ेगा. विकेडनेस, यू मस्ट बरी यू विकेडनेस एंड वी मस्ट रेजरेक्ट विद जीसस क्राइस्ट. दैट इज लाइक गुडनेस. शो योर गुडनेस amongst the people in the society, amongst your relatives, amongst your family members. Unfaithfulness. In our day-to-day life, we have been like an unfaithfulness in our parents, relatives, and brothers and sisters, in our friend circle. But Jesus Christ wants, you must bury that, then you must resurrect. You must be resurrected with Jesus Christ. That is like faithfulness in our life. रूडनेस. आज बहुत सारे लोग को, हम लोग बात करने का तरीका नहीं है, प्यार मोहब्बत से बात नहीं कर सकते, हमेशा मतलब नफरत भरा हुआ है हमेशा अपने मन में, दिल में, वो मतलब अपने बात करने का तरीका नहीं है. तो उसके लिए अपने मन में मतलब वो क्लेश जगह रहता है, अपने घर में मतलब शांति नहीं है. तो दैट्स व्हाट God wants you to be resurrected with him. That is like a gentleness. The way we talk, the way we treat to the people, to our, especially to our family members, brothers and sisters, and near and dear ones. How are we treating to our friends and family? Are we talking rudely or we are talking to gently? My dear brothers and sisters, self-control. What self-control is? अब सदियों से, पीढ़ी भर पीढ़ी, नस्लें भर आपके मन में, स्पेशली आई एम टेलिंग टू द यूथ एंड मेन टुडे, कि अपने जो समाज में जो माँ बहन है, उनके प्रति आपका सोच विचार क्या है, उनके प्रति आपका
मतलब आपकी कैसा नज़रिया है देखने का नज़रिया, वो नज़रिया को आज जो आपका नज़र है देखने का नज़र, वो आपको परमेश्वर यीशु मसीह के साथ आज आपको रेजरेक्शन होना पड़ेगा। इसके लिए आज अपने समाज में आज बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो रहे, रेप, मारपीट, ये सब, लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें नहीं है वो अपने समाज में हो रहा है, क्योंकि अपना जो सोच विचार है गंदा है, अपने जो देखने का नज़रिया वो गंदा है, उसको आज आपको चेंज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई लेकिन जब मैं बिगिनिंग जो शुरुआत में कहा कि अपने जो नेचर है, अपना जो बिहेवियर है, अपना जो एटीट्यूड है, वो देखने का नज़रिया सोसाइटी के प्रति, माँ बहन के प्रति आपको बदलना पड़ेगा मेरे प्यारे अजीजों। नहीं तो आपने समाज में ऐसा ही हो, ऐसा ही रहेगा। परमेश्वर हो यीशु मसीह वो नहीं सिखाया, जीवन भर में कलाम मुकद्दस में हर एक चीज़ में बताया कि अपने देखने का नज़रिया बदलना चाहिए, अपने मतलब चाल चलन में, अपने बातचीत करने में, अपने जो एटीट्यूड है, अपने जो नेचर है, स्वभाव है, उसमें बदलना चाहिए। तभी आप एक लाइक अपने समाज को, अपने सोसाइटी को, अपने देश, अपने नेशन को और अपने जो कंट्री है और अपने जो धरती पे है, आप एक अच्छे उदाहरण हो के बन सकते हैं, ताकि आपको लोग देख के आपके सोच विचार और आपके स्वभाव है उसको देख के लेकिन आपको लोग फॉलो करेंगे और उसके माध्यम से आप सोसाइटी में आप एक बदलाव ला सकते हैं, चेंजिंग ला सकते हैं आप। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इनजस्टिस बहुत बड़ा मुद्दा है अपने सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने देश में। पैसा के लिए, धन दौलत, शोहरत के लिए कोई भी कुछ करने के लिए, कर गुजारने के लिए रेडी है मेरे प्यारा जी। जो यीशु मसीह वो नहीं सिखाता है। आज यीशु मसीह चाहता है कि आप इनजस्टिस को दफना के आप जस्टिस के साथ आज रेजरेक्शन हो। परमेश्वर वो चाहता है ताकि अपने समाज में हर एक काबिले, हर एक कस्बे, हर एक माशरे में शांति होगी और जस्टिस का एक फूल खिलेगा। वो परमेश्वर चाहता है। आज आप इनजस्टिस को दफना के यीशु मसीह के साथ आज रेजरेक्शन डे और अपना जो ईस्टर डे में आपको जस्टिस के साथ आज रेजरेक्शन होना पड़ेगा, तभी अपने समाज में, सोसाइटी में सुधार होगी मेरे प्यारा जी। जो अनट्रुथ, असत्यता के साथ हम कब तक लगे रहेंगे, कब तक वो मतलब दुनिया करती वो करेंगे। यू आर नॉट called to be like fit into this society's norms, but you are called to stand out. Then you need to show the truth to the people. 1000 में से कोई एक भी आज सत्यता के लिए खड़ा होगा तो आज अपने देश और आज अपना समाज बदल सकता है। मगर आप में जुर्रत, आप में वो मतलब मजाल होनी चाहिए सत्यता के लिए आप खड़ा होने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह भी आज जो सूली पे मसलूब हो गया वो एक सत्यता के लिए और सच्चा मोहब्बत के लिए वो आज इतिहास लिख गया मेरे प्यारे अजीजों। God wants to change from your an old behavior, old nature. अगर आज आप अपवित्रता में चल रहे हैं, if you are walking on the unholiness, today God wants to be resurrected from holiness today. If your prayer life is weak today, you need to be resurrected with Christ today. So you need to bring into your alive your prayerfulness. My dear brothers and sisters, अगर आप नेकी की राह में नहीं चल रहे, if you are still walking in the unrighteousness, today God wants you to be resurrected with Him. That's righteousness. नहीं तो इस तरह से आते रहेगा, जाते रहेगा, आप जैसे कि वैसे रहेंगे और आप एक जाते जाते अपनी नस्लों को, आपको जो पीढ़ी है, आप जैसे चल रहे हैं, आप जैसे बर्ताव कर रहे हैं, आपका चाल चलन है, आपको जिंदगी जीने का जो तरीका है, आप एक नस्ल के लिए, आप एक जो पीढ़ी के लिए आप ऐसे ही छोड़ जाएंगे मेरे प्यारे अजीजों। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टुडे यू नीड टू टेक रेजोल्यूशन, टुडे यू नीड टू टेक डिटर्मिनेशन। संकल्पबद्ध होना चाहिए कि आज अपने नेचर से, अपने स्वभाव से, अपने देखने के नजरिए से, अपने नेगेटिविटी से आपको आज उठना पड़ेगा। यीशु मसीह के साथ आज आपको रेजरेक्शन होना पड़ेगा, ताकि आपके जब जिंदगी में बदलाव आएगा, आपके जब जिंदगी में जब चेंजेस आएगा,
तभी आप एक सोसाइटी में एक चेंजेस ला सकते हैं। जो सोसाइटी में चेंजेस होगा वो अपने देश में चेंजेस होगा, जो देश में चेंजेस होगा वो आज दुनिया भर में चेंजेस होगा। दैट्स व्हाट जीसस क्राइस्ट वांट्स फ्रॉम यू। इट्स नॉट अबाउट लाइक बस किसको बस विश करते रहो, साल भर साल आते रहेगा जाते रहेगा, विश करो, नए कपड़े पहनो और बस रीति रिवाज के परंपरा के हिसाब से चलो। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर वो नहीं चाहता, यीशु मसीह वो नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि आप कुछ सोसाइटी के लिए कुछ बदलाव लाए। आपके जो नज़रिया, आपको जो देखने का तरीका है, आपको जीने का तरीका है, आपको जो नेचर है, आपको जो बिहेवियर, आपके स्वभाव से परमेश्वर चाहता कि रेजुरेक्टेड यीशु मसीह साथ आज होइए, ताकि आप एक नस्ल के लिए, एक पीढ़ी के लिए जो एक बीज बो के जाएगा, वो बीज जब समय, जब वक्त आएगा, एक अच्छा फल लेके देगा और एक सक्सेसफुल और एक अच्छा सोसाइटी बन के लेके आएगा, ताकि आप परमेश्वर राज्य में यादगार बन के रहेंगे। आप मेरे प्यारे अजीजों, let's not follow the tradition. Let's follow Jesus Christ. Then only you can change. Then only you can see changes in your life. Then you will have successful life. Then you will live a genuine life with Jesus Christ. That's what Jesus Christ wants. Not all the tradition और परंपरा, रीति रिवाज नहीं चाहता वो। My dear brothers and sisters, I'm hoping and praying to God that this message will bring some revelation in our life. Please share it across, like it. You never know, one message or one sentence may change somebody's life. Especially I'm telling to the youth, repent from your sin. Today is the day. You must be resurrected from your drugs addiction, alcohol addiction, smoking addiction, pornography addiction, and gossiping addiction, untruthful addiction, disobedience addiction. If you have not taken any good decision, if you have not set up your dreams, goals, visions, this is the time that you must be resurrected with Jesus Christ today. That's what Jesus Christ wants, so that you will have a best life, so that you will have an amazing career with Jesus Christ. Whatever you are today, you will not be tomorrow the same. Youth, today you must be resurrected with your new hope, new dreams, new visions and new goals, so that you can change to the society, because you have changed yourself. Through you, Jesus Christ will change to the society, and He will bring revelation amongst the people, that you will be blessed for so many souls. That's what Jesus Christ wants. My dear brothers and sisters, 2 Corinthians 5:17 says, 2 Corinthians 5:17 says, you are no more old, but you are new creation in Jesus Christ. You are new creation. You and me are new creation. Whatever things has been gone, let bygones be bygones. Start with your new thing, with resurrection day. Resurrect your spirit. You have been resurrected today with Jesus Christ. Spiritually, mentally, physically, economically, socially. But you need to take determination. Take a step. God will take you to 10 step ahead. But क्या आप में मजाल है, क्या आप में ज़रूरत है, कि आपको कुछ नए करने के लिए कुछ जिज्ञासा है मन में कुछ, तो दिस इज द डे माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। नहीं तो ये रेजरेक्शन डे, ये ईस्टर आते रहेगा जाते रहेगा, 2000 साल से आ ही रहा है, जा ही रहा है, मगर आप में क्या आ रहा है, न्यू थिंग क्या आ रहा है, वो आपको इंट्रोस्पेक्टेशन करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा वो चीज़। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, thank you so much. Shalom to all of you. Hopefully this message will bring revelation to you and bring some changes in your life, so that you will be blessing for the society. Once again, as I always tell you all, that you and me are not the citizen of this earth. We are the citizen of this heaven. Be the best citizen of this earth, so that
you will become the best citizen of the heaven. Shalom and God bless you. Thank you so much.